Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about components of the ecosystem, and that we have stopped at food chain and food web concept. Today we are going to discuss about one more concept and really very important topic of this entire chapter, that is ecological pyramids. So dear students, we know the basic structure of the pyramid. We know the definition of the ecology itself. So how this ecological pyramids are functioning and what is the exact concept of the ecological pyramids. So dear students, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है. ये ऐसा एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर में से. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ecological pyramids. So ecological pyramids are actually graphical representation, picturization of variety of the concepts of an ecosystem. So the representation of a food chain in the form of a pyramid is called ecological pyramid. अब आपको यहाँ पे एक वर्ड पे थोड़ा फोकस करना है, representation of the food chain. तो not only the trophic levels, but एक food chain में कौन कौन से concept काम कर रहे हैं, okay, behind the curtains क्या चल रहा है, those concepts are also going to be discussed with the help of the ecological pyramid. So एक simple सा definition है, the representation of a food chain in the form of pyramid is ecological pyramid. The base of a pyramid represents the producers. That is the first trophic level. You can see एक basic यहाँ पे picturization आपको दिखाया गया है. Base of the pyramid is representing the producers of the ecosystem. मतलब जो sunlight को trap करके food बना रहे हैं, and that food and nutrients and energy is going to be utilized by the successive trophic levels. So the base is representing the first trophic level. The apex represents tertiary और top level consumers. Apex मतलब उसकी जो tip है, apical point, okay, that is representing tertiary और you can say top level consumer. कभी वहां पे quaternary भी हो सकता है, मतलब 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोसिस्टम में. तो यहाँ पे टॉप लेवल जो है कंज्यूमर्स, दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द एपेक्स ऑफ द पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. फर्स्ट वन, अ पिरामिड ऑफ नंबर. सेकंड, pyramid of biomass. The third one, that is the pyramid of energy. So 3 pyramids you are supposed to study in this particular chapter: number pyramid, biomass pyramid and energy pyramid. ये तीनों pyramid एक इकोसिस्टम में काम करते हैं, पैरेलल चलते हैं, लेकिन सभी का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है. And all the pyramids size, shape and structure of the pyramid depends on the ecosystem itself. कौन से इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड रिप्रेजेंट करेगा, you can say the shape of the pyramid as well. Okay, it depends on the type of the ecosystem. So starting with the first pyramid, that is pyramid of number. For example, in grassland ecosystem, what will be the condition of the pyramid of number? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक grassland ecosystem आपको दिखाया गया, and in that grassland ecosystem the base is represented by the grass itself. Okay, and obviously this grass is producer. This grass can be utilized by the rabbits,
they are the primary consumers. This primary consumers, or you can say this rabbits, can be utilized by snakes. Snakes are the secondary consumers. The snakes, which is being primary carnivore, now can be utilized by the eagle, that is the tertiary consumer, or you can say top carnivore. तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसे वेरी करता है, अब देखिए. तो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम देयर इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द ग्रास. ओके, तो यहाँ पे आप देखो नंबर में काउंट किया गया ग्रास जो है उसको, यू कैन सी 58,42,000 क्रॉप्स ऑफ द ग्रास, प्राइमरी प्रोड्यूसर इज देयर. उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब कि रैबिट्स जो है यहाँ पे, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, दोज आर ओनली 7,08,000. ओके, 8 टाइम्स कम हो गया है, राइट? तो you can see ये जो नंबर पिरामिड है उसमें कितना कम हो रहा है नंबर. ओके, 8 टाइम्स कम हो गया अप्रोक्सीमेटली, राइट? एंड ऑन दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब जो रैबिट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जो स्नैक्स है वो भी आप देखिए तो दे आर ओनली 3,54,000. तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो रहे हैं. एंड द टर्शियरी कंज्यूमर, द ईगल, टॉप कार्निवर्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द स्नैक्स, आप देखो वहां पे तो लैक्स में कम हो गया है नंबर उनका, राइट? तो ओनली 3 आर देयर. सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवर या अल्टीमेट टर्शरी कंज्यूमर तक हम जैसे पहुंच रहे हैं, along with that the numbers are gradually increasing with the higher trophic level in the grassland ecosystem. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नीट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द नंबर पिरामिड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, इट इज अपराइट. ओके, इट इज अपराइट शेप, ओके, ऑफ द नंबर पिरामिड इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. क्योंकि ग्रास से लेके अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू द ईगल, ग्रेजुअली द नंबर्स आर डिक्रीजिंग. Right? So in that way, the number pyramid is actually functioning in the grassland ecosystem, जहां पे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे हैं. और ऐसा ही आपको सोचना है कुछ और इकोसिस्टम्स के बारे में, दैट इज योर होमवर्क. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो सकता है ढूंढिए. Now if we are going to talk about pyramid of biomass, what will be the condition? So biomass pyramid आप अगर देखिए तो बायोमास पिरामिड में प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसका ड्राई वेट जो है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, वॉल्यूम में हम काउंट कर रहे हैं ना, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो 809 इज द अमाउंट ऑफ द ड्राई वेट इन दिस गिवन केस, 809 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, दोज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनका जो ड्राई वेट है दैट इज 37 ओनली किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड the organisms, these are the secondary consumers which are dependent on the primary consumer, उनका तो बायोमास आप देख सकते हैं और भी कम हो रहा है, that is 11. tertiary consumer that is 1.5. dear students, I would like to say कि ये क्वेश्चन इसी डेटा के साथ नीट में पूछा गया है, with the same data given. okay, क्वेश्चन में पूछा गया है कि if the biomass of the primary producer in a given ecosystem is 809 kilogram per meter cube, what will be the
biomass of the secondary consumer or the tertiary consumer in the given ecosystem. तो देखिए हम कैलकुलेट करने जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक का ही फैक्ट फिगर वहां पे दिया हुआ है, तो आपको वहीं से आंसर लिखना है. ओके, नो नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर. So it shows a sharp decrease in biomass at higher trophic levels. Clear visible है 809 से लेके सिर्फ 4 ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते it came to 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, तो ड्राई वेट जो है वो यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे आप देखिए एक और इकोसिस्टम ऐसा दिखा है जहाँ पे बायोमास जो है ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो बायोमास है दैट इज 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसका बायोमास इंक्रीज हो रहा है दैट इज 21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये जो है इसको आप बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि बेस उल्टा हो गया है. आप देखो बेस विच इज ब्रॉड, ओके, वो ऊपर है. सो इट इज इन्वर्टेड पिरामिड. हमने देखा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड था ऑफ द नंबर दैट इज अपराइट. यहाँ पे भी ये जो पिरामिड है ऑन दिस स्लाइड, this one is also upright, but this pyramid is, you can say, inverted, downward pyramid है. It is called inverted pyramid of the biomass. तो ऐसा कहाँ पे होगा? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसा पॉसिबल है. एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखिए क्या हो रहा है. तो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन. स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन हमें पता है, कल ही हमने डिस्कस किया स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में. तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन ट्रॉफिक लेवल दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. तो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जू प्लैंक्टन, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? जू फाइटोप्लैंक्टन्स. Small standing crop of the phytoplanktons supports the large standing crop of the zooplankton. मतलब अगर कम अमाउंट में भी फाइटोप्लैंक्टन है they can support zooplankton for their livingness. तो ऐसा आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने मिल सकता है where the biomass pyramid is becoming the inverted pyramid. यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है कि जहाँ पे बायोमास जो है वो कम होता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द हायर ट्रॉफिक लेवल. द थर्ड पिरामिड दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी पिरामिड के लिए तो फिक्स है, उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते हैं. एनर्जी पिरामिड बिकॉज एक कंसेप्ट याद करिए एनर्जी पिरामिड का. ओके, at every trophic level the energy is going to reduce by 10%. okay, तो 10% reduced energy का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाएगी. तो ऑब्वियसली एनर्जी पिरामिड जो है इट विल बी अपराइट. तो आप देखो यहाँ पे जैसे सनलाइट में से जो एनर्जी मिल रही है 10 लाख जूल्स ऑफ द सनलाइट इज देयर. उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं कौन? प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स. एंड दे आर यूटिलाइजिंग इन सच अ वे दैट 10,000 जूल is being available at that place. From that, according to the 10% rule, primary consumer के लिए available हो जाएगा 1000, secondary consumer 100 and tertiary consumer हो जाएगा आपका 10 joule. So every stage there is a decrease of the 10%. okay, तो इसलिए आप देखो यहाँ पे जैसे ग्राफिकल वे में भी बताया कि सन एनर्जी इज एंटरिंग इनटू द इकोसिस्टम. तो सनलाइट की एनर्जी किस तरह से एंटर होती है इकोसिस्टम में
वो भी हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड बाय दैट दे आर allowing the sunlight radiant energy to enter into the ecosystem. फिर उसमें से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो 100% यूज कर रहे हैं उसमें मतलब उसने जो पार यूज किया है, अब ये 100% का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार, उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा एंड फ्रॉम दैट सेकेंडरी कंज्यूमर 1%, थर्ड लेवल कंज्यूमर दैट इज 0.1%, एपेक्स प्रेडेटर्स मतलब फाइनल कंज्यूमर्स जो है और यू कैन से फाइनल टॉप कार्निवर्स जो है दे आर ओनली गोइंग टू गेट 0.01%. और हर एक लेवल पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो एट एवरी स्टेज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर, राइट. और उनके जो डेड बॉडीज हैं ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डीकम्पोज्ड बाय द डीकम्पोजर्स थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन, और फिर डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू, डेट्रिटस मेथड के थ्रू वो वापस रिसाइकल होके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. फाइन. तो any calculations of energy content, biomass or number has to include all organisms at that trophic level. Okay, तो क्योंकि trophic level के उस trophic level पे कौन से organisms है, on the basis of that you have to calculate. That's why. So whatever calculations you are doing, counting the energy, biomass in the terms of dry weight or numbers of the organism, okay. तो उस ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है यू हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम एट द सेम ट्रॉफिक लेवल. ओके, अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच. अब ये भी याद रखो ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये नहीं है कि if the secondary consumer is lion in a certain ecosystem तो फिर it is only lion. No, वहां पे टाइगर भी हो सकते हैं which are dependent on the primary consumers that is deer in the forest ecosystem. तो ट्रॉफिक लेवल एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई या जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है. फंक्शनल लेवल मतलब प्राइमरी कार्निवर. तो फिर प्राइमरी कार्निवर में कौन कौन हो सकते हैं इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो आपको सोचना है. इट इज नॉट स्पीसीज ओनली, ये फंक्शनल लेवल है. से फॉर एग्जांपल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्या सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ओनली the grasshopper is eating up the grass? No, there are certain other insects, okay, which can eat up the grass. There are certain other herbivores, animals which are eating the grass. So all these organisms or animals will be considered as primary consumers, right? तो वो एक functional level है. It is not mere species only. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. तो ये कंसेप्ट मैंने कल भी आपको बताया था कि एक ही स्पीसीज एक से ज्यादा इकोसिस्टम एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है. बिकॉज our concept of the food chain is not that much simple. It is food web actually whenever it is functional ecosystem. तो functional ecosystem में क्या होगा, एक ही स्पीसीज अलग अलग जगह पे अपने आप को ऑक्यूपाई करवा सकता है, जैसे फूड वेब में हमने देखा था, राइट. सो इन दैट वे द स्पीसीज कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्पैरो, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है. स्पैरो इज रिप्रेजेंटिंग व्हिच trophic levels? Okay, so sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruits, peas
or whatever plant material it is eating up. Okay, तो वो primary consumer है. It is acting as or behaving as herbivore, and in the same time it can act as a secondary consumer when it eats insects and worms. Okay, तो dear students, ऐसे ही एक दूसरे ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे जस्टिफाई करवा सकते हैं. से फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैन आल्सो बी प्राइमरी कंज्यूमर और ह्यूमन कैन आल्सो बी सेकेंडरी कंज्यूमर इफ द ह्यूमन is directly dependent on the plant derived food, then it is primary consumer. When the human is eating up fish and all this type of the non-vegetarian diet, then it is obviously considered as secondary consumer. Okay, so in that way number of the positions may be changed, okay, with respect to the you can say eating habits of any organism. So in most of the ecosystem all the pyramids are upright. Okay, ज्यादातर ecosystem में आपको देखने मिलेगा that is producers are more in number and biomass than the herbivores. तो producer का number भी ज्यादा होता है, biomass भी ज्यादा होता है, that is एक common perception है. And herbivores are more in number and biomass than the carnivores. मतलब आप जैसे जैसे trophic level पे upside जाओगे to the tip, okay, number is also eventually going to decrease, biomass is also eventually going to decrease. Say for example यहाँ पे एक forest ecosystem का example दिया है जहाँ पे producer 1000 किलोग्राम है, herbivores 100 किलोग्राम है, primary carnivores 10 किलोग्राम, biomass की हम बात कर रहे हैं, and top carnivore only 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम मतलब lion का weight 1 किलोग्राम है ऐसा नहीं है, लेकिन it is किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, इस रेशियो में हमने उसको कैलकुलेट किया है. ओके, तो रेशियो के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये बायोमास कम होता जाता है. इन द सेम वे नंबर आर ऑल्सो इवेंचुअली गोइंग टू डिक्रीज. आप देखो ग्रास कितने सारे, फिर रैबिट कम हुए, स्नेक उससे भी कम हुए, ईगल तो उससे भी कम हो गए. सो इन दैट वे डिफरेंट जो आपके इकोसिस्टम्स है उन सभी इकोसिस्टम में, नॉट ऑल बट मेजोरिटी ऑफ द इकोसिस्टम्स में ऐसा होता है कि नंबर एंड बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर is obviously going to lower down with the successive increase in the trophic level. जैसे जैसे आप टॉप लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे बायोमास और नंबर कम होता जाता है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. as well as energy at a lower trophic level is always more than that of the higher level. अब देखो यहाँ पे एक ही पिरामिड में दो तीन कंसेप्ट मर्ज कर दिए गए. आप देखो हर एक लेवल पे एनर्जी इज गोइंग टू रिड्यूस. सनलाइट में मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर में उससे कम हुई, फिर 10% का रूल काम कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस. अब यहाँ पे देखो एक और भी चीज आपको दिखाई गई है. इट इज रियली अ नाइस पिक्चराइजेशन के ट्रॉफिक लेवल्स आर नॉट स्पीसीज ओनली. अब देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज द प्रोड्यूसर, तो वैरायटी आपको दिखाई, फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रास एंड ऑल दिस. देन डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे हैव शोन हियर. प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहने वाले अलग अलग तरह के सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहने वाले डिफरेंट टाइप के टर्शरी, एंड देन द टॉप कार्निवर. तो आप देखो वैरायटीज भी कम होती जा रही है. ओके, एज वेल एज नंबर भी कम होते जा रहे हैं, बायोमास कम होता जा रहा है, एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज. Some examples of the inverted pyramids. Okay, वो भी आपको समझने हैं. तो ये है आपका inverted pyramid of number. So एक अगर ऐसा इकोसिस्टम है where the insects are feeding on a big tree, okay, क्या होगा? Pyramid of biomass in sea is inverted because of the biomass of fishes far exceeds that of the phytoplankton. अब आप देखो यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसी दिखाई गई है जहां पे
नंबर का पिरामिड जो है इट इज बीइंग इन्वर्टेड व्हेन द ट्री इज अ प्रोड्यूसर। ट्री एक है, उसके ऊपर कुछ बर्ड्स जो है दे आर सर्वाइविंग, दे आर हर्बीवर्स, right? Then this birds are going to be utilized by the parasites, okay? Then hyper parasites are also there। तो आप देखो नंबर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक ट्री के ऊपर डिपेंड होने वाले बर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं और इस बर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले पैरासाइट्स तो और भी ज्यादा होंगे, और उन पैरासाइट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दोज आर कॉल्ड हाइपर पैरासाइट्स, वो तो उससे भी ज्यादा होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चूज कर रहे हो कि जहां पे बायोमास अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर ट्री का ज्यादा होगा इन सब से, तो ये पिरामिड अपराइट हो जाएगा। आप देखो नंबर पिरामिड इज यू कैन से इन्वर्टेड बट बायोमास पिरामिड इज, ये जो है इस इकोसिस्टम का इट विल बी अपराइट। Come to this picturization, that is inverted pyramid in an aquatic ecosystem for biomass। अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दे आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब सभी जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका ओवरऑल बायोमास अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इट विल बी वेरी लेस, नंबर तो बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे ये देखो दोनों पिरामिड में क्या हो रहा है, ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड है और बायोमास का पिरामिड, यही पिरामिड बायोमास के लिए अगर ड्रॉ करते हैं हम तो फिर ये अपराइट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके? क्योंकि ये शफल करके आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो फिर क्या हो रहा है, बायोमास पिरामिड इज बिकमिंग यू कैन से इन्वर्टेड, और जो आपका नंबर का पिरामिड है वो अपराइट हो जाएगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स तो मिलियंस बिलियंस में होंगे, okay, compared to the fishes and large fishes and whale and all this, right? So ultimately you can say यहाँ पे अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड की अगर बात करते हैं तो फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का वो हर्बीवर्स फिशेस या जो जू प्लैंक्टन है उससे तो कम ही होने वाला है। मतलब हर्बीवर फिशेस का बायोमास बढ़ने वाला है, हर्बीवर्स फिशेस या स्मॉल फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट जो लार्ज फिशेस है उसका बायोमास तो उससे भी ज्यादा होगा, मतलब कार्निवर्स का। सो कहने का मतलब ये है कि विद सक्सेसिव इंक्रीज इन द ट्रॉफिक लेवल द बायोमास इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके? और इसी वजह से ये इन्वर्टेड पिरामिड हो जाता है, ओके? सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये इकोसिस्टम आप कोई भी ले लीजिए, नंबर और बायोमास का पिरामिड अपराइट या इन्वर्टेड हो सकता है, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी पिरामिड इट इज ऑलवेज अपराइट, because when energy flows from a trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step, okay? जैसे जैसे आप मतलब ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, एवरी टाइम वी नो दैट विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेशन एंड ऑल दिस प्रोसेसेस, okay, energy is going to be lost at each trophic level, right? And dear student, I would like to correct one more thing। एक गलती एक हुई है आगे यूनिट लिखने में। The biomass is not measured in the form of kilogram per meter cube, it is kilogram per meter square, okay? I'm sorry for that, टाइपिंग एरर वहां पे है स्लाइड में, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं है, इट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर कंसिडर इट, जैसे यहाँ पे उसको करेक्ट कर दिया हुआ है फोटोग्राफ में, इट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ओके? सो यूनिट को याद रखिएगा। Now certain limitations of the pyramids,
So pyramids does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. Okay, तो अगर एक ही species एक से ज्यादा trophic level पे है तो क्या? Okay, so ideally you have to put that species only at the one trophic level. Okay, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे जो है उसको आप अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, मतलब इफ यू आर नॉट टेकिंग दो स्पीसीज इन द अकाउंट ऑफ मेकिंग अप और डिजाइनिंग द पिरामिड ऑफ द इकोसिस्टम, ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम. उसका कुछ तो रोल है, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग इट. इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स. ओके, ये एक उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है. It assumes a simple food chain that almost never exists in nature. तो पिरामिड एक सिंपलाइज्ड वर्जन दिखा रहा है आपको एक फूड चेन का, जैसे कि 1-to-1 इंटरेक्शन. ओके, मतलब ग्रासलैंड में ग्रास है तो इज गोइंग टू ईट अप दिस ग्रास, तो सम इंसेक्ट्स एंड rodents and all these are there. This insects and rodents are going to be utilized by some other organisms. ऐसे वो बात कर रहा है pyramid, right? So it is just like a mere simple food chain. बट किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन इतने सिंपल नहीं है. एट द बिगिनिंग ऑफ टुडेस लेक्चर आई हैव सेड इट इज नॉट सो सिंपल. सभी फूड चेन जो है दे आर एक्चुअली जगल्ड अप, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड दे आर मेकिंग अप द कंसेप्ट ऑफ द फूड वेब. तो जब आप फूड वेब डिजाइन की बात कर रहे हैं तो फिर पिरामिड्स तो बन ही नहीं सकते हैं ना, राइट? सो दिस इज ऑल्सो one important aspect. It does not accommodate a food web. Okay, क्योंकि आप उसको consider नहीं कर रहे हैं, right? Saprophytes are not included in the ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. तो जो saprophytic organisms हैं, okay, उनका तो कहीं पे importance दिया ही नहीं गया है. okay, क्योंकि हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था सैप्रोफाइट्स मतलब डीकंपोजर्स, फंगस, बैक्टीरिया, सम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दिस, राइट? दे आर द क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स एंड दे आर ऑब्वियसली प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, मिनरल न्यूट्रिशन साइकिल को रन करने के लिए भी उनका रोल है, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में भी उनका रोल है, बट वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, ओके, अबाउट द saprophytes. Okay, that is one more important limitation. लेकिन सिर्फ limitations ही हैं इकोसिस्टम के, ऐसा भी नहीं है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स के सिर्फ लिमिटेशन है, ऐसा भी नहीं है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर really helpful in some concepts, okay, or understanding some concepts of the ecosystem, you can say. तो एक तो आपको क्या पता चल सकता है, तो they show the feeding of different organisms in different ecosystem. okay, कौन से ऑर्गेनिज्म अपने फूड हैबिट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो एक तो पता चल सकता है. मतलब रिलेशन, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप मार्किंग आप कर सकते हैं by understanding the ecological pyramids. Number 2, it shows the efficiency of the energy transfer. जब अगर हम energy related concept को पढ़ रहे हैं तो it is showing up the energy transfer. okay, 10% वाला rule जो है उसको भी हम justify करवा सकते हैं. The condition of the ecosystem can be monitored and any further damage can be prevented. अगर किसी भी ecosystem में कुछ problem है, if the ecosystem is not functioning smoothly, then what? तो ऐसे जो इकोसिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अगर प्राइमरी कंज्यूमर सडनली आपको पता चला कि वॉल्फ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बाय ऑब्जर्विंग द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल दैट इज द हर्बीवर्स आप चेक कर सकते हैं whether it is the problem with the herbivores के herbivores के population कम हो गए या primary producer के population कम हो गए, या तो wolf के ऊपर depend रहने वाले जो lion और tiger हैं उनकी population में कुछ फर्क पड़ा है क्या. So you can
check the ecosystem. मतलब pyramids are important, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसके limitations ही हैं जो आपको यहाँ पे slide पे दिख रहे हैं. But the pyramids can be useful for understanding variety of the concepts, right? So dear students, ये जो pyramids है उनका इस तरह का कुछ रोल इकोसिस्टम फंक्शनिंग में और उसको समझने के लिए है. So dear students, with respect to this end notes from ecological pyramid part, okay, we are ending up this lecture over here. In the next session, we are going to discuss about ecological succession. So how variety of the species have emerged, how they have established on variety of the niches and all this, okay, that we are going to learn. It is really very interesting to understand about ecological succession. Okay, so be ready for this upcoming lecture and please prepare about ecological pyramids very well from your textbook as well as from your reference book. Okay, and please go through number of the questions which are related to the ecological pyramids, food chain and food web. They're really very simple questions, but you have to clear your concepts. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखता है ऐसी जगह से, लेकिन यू कैन बी ट्रैप्ड इन दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो ऐसा नहीं होने देना है. We have to obviously cover all the questions which are related to this particular concept, और उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. Okay, your focus should be like this, right? So dear students, I'm ending this session right now. If you are any doubt, any queries, questions regarding today's topic, please call me. You can WhatsApp me. Okay, stay safe, have a nice day.